आए हैं, शायर अहले बैत, उन्हीं का कलाम है। तो कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने अपनी ही आवाज़ में पढ़ा है, बहुत मशहूर और मारूफ। और कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो एक नारे से लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अर्जिल फरजहू। मोमिनों को मुबारक अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मोमिनों को मुबारक अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। मौत तेरे मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत तेरे मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हजर, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। मोमिनों को मुबारक अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफ़ा रब भी राजी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। जिब्राईल और कम्बर पर क्या मोहसल, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। मसलके इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं। क्या हुआ आँख में और क्या हुआ आँख में घर नमी आ गई। मोमिनों को मुबारक अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और आज क्या है कि इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की।
عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، صبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ بچوں پیچھے آگے آؤ یار، محفل ہے یہ، کوئی تھوڑی دوری ہے، دوری بنا کے اور قریب آؤ یار، یہاں خالی جگہ ہے، مل کر کے سلوات تو بھیجو گے کم سے کم، الگ الگ بیٹھ کے۔ چلو آگے آئے حضور، یہاں تشریف لائے آگے۔ نہیں کووڈ ختم ہو گیا، دھل گیا معاملہ سارا۔ ماسک نہیں لگا لگا دیے اس میں کیمرے میں ایسے ہی لگا ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ سواون پڑھ لوں گے بس اس ٹائم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے شاید آپ لوگوں کا سنا ہوا ہی ہوگا۔ بارہ مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو گنگنایا، سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے 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 خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہوئے جب در شہ پایا، سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، صدا یا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا، سویرے سویرے پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا، سویرے سویرے ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، لبوں پر دعا تھی، لباس جنا لے
کہ رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سویرے تو رضوان جنت نے صلوات پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی جو ہی میں نے گھر میں حدیث قصہ کے دیے کو جلایا سویرے سویرے میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو سہیل ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ قصیدہ لکھایا سویرے سویرے سہیل ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ قصیدہ لکھایا سویرے سویرے۔ شعر یاد آ گیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت جلدی یہ مشورہ ہمارے سب تشریف لا چکے ہیں کہ کیا جلد گیا سوئے بقا دار فنا سے، کیا جلد گیا سوئے بقا دار فنا سے، سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ اسی شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک شاعر امروہہ کی سرزمین سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم امروہی بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں، ایک نعرہ صلوات سے آپ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے جلدی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو، حاضر کرتا ہوں کہ سخی دلیر علمدار کربلا کا جواب، سخی دلیر علمدار کربلا کا جواب، نماز شب کی دعا ہو جو اس دعا کا جواب، سخی دلیر علمدار کربلا کا جواب، نماز شب کی دعا ہو جو اس دعا کا جواب، تو زمانہ مل کے اگر حشر تک تلاش کرے سکینہ مل نہیں سکتا تیرے چچا کا جواب، زمانہ مل کے اگر حشر تک تلاش کرے سکینہ مل نہیں سکتا تیرے چچا کا جواب، تو آ رہا ہے سرے میدان علی کا جانی، آ رہا ہے سرے میدان علی کا جانی، سوکھے پتوں کی طرح تم تو بکھر جاؤ گے، آ رہا ہے سرے میدان علی کا جانی، سوکھے پتوں کی طرح تم تو بکھر جاؤ گے، تو تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، تم کو عباس جو دیکھیں گے تو مر جاؤ گے، تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، تم کو عباس جو دیکھیں گے تو مر جاؤ گے۔ درود پڑھیے آپ حضرات۔ اللہم صل علی محمد۔ درود سے نعرہ پڑھ دیجیے آپ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک مطلب اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ آصف بھائی تکلیف ہے روشنی،
مطلب عرض کرتا ہوں کہ آج کی محفل کا ہے عنوان مدحت روشنی. آج کی محفل کا ہے عنوان مدحت روشنی. زینت مسند ہے خود محو سماعت روشنی. زینت مسند ہے خود محو سماعت روشنی. تو ڈوبتا سورج افق پر پھر نظر آنے لگا. ڈوبتا سورج افق پر پھر نظر آنے لگا. آ گئی جس دم سرے دوشے رسالت روشنی. ڈوبتا سورج افق پر پھر نظر آنے لگا. آ گئی جس دم سرے دوشے رسالت روشنی. تو داغے ماتم سے ہجوم تیرگی چھٹ جائے گا. داغے ماتم سے ہجوم تیرگی چھٹ جائے گا. قبر میں ہوگی میرے ان کی بدولت روشنی. قبر میں ہوگی میرے ان کی بدولت روشنی. داغے ماتم سے ہجوم تیرگی چھٹ جائے گا. قبر میں ہوگی میرے ان کی بدولت روشنی. تو خانہ معبود تھا تاریخ صدیوں سے مگر. خانہ معبود تھا تاریخ صدیوں سے مگر. بالیقین پھیلا گئی شمع امامت روشنی. بالیقین پھیلا گئی شمع امامت روشنی. تو ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک سکتے نہیں. ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک سکتے نہیں. دے گئی نوکے سنا اس کی شہادت روشنی. دے گئی نوکے سنا اس کی شہادت روشنی. وقت حاضر کرتا ہوں کہ ذکر سے معصوم پایا یہ شرف. ذکر سے معصوم پایا یہ شرف. دے رہی ہے آج جو تیری بلاغت روشنی. دے رہی ہے آج جو تیری بلاغت روشنی. امام محمد عاقل علیہ السلام کی یہ لقب میں یہاں کے لیے انجام تھا. آصف صاحب نے مجھے صاحب میں شریک کرا دیا آج ماشاءاللہ, اور بالکل میرے دروازے کے سامنے. ہم بھی پہلی بار آئے. اچھا, آپ تو دوسرے اسٹیٹ سے آئے, دلی سے. میں تو محلے سے بھی نزدیک ہوں بالکل. 8-10 مکان چھوڑ گئی ہے میرا. تحقیق ہو گئی. بس ہو گئی بہت بلند سلوات. یہ بطور ثواب ریپر صاحب کے ہیں کچھ شعر میں بس یہ. اچھا کیجیے. بن گیا دل سے ثنا خوان محمد باقر. بن گیا دل سے ثنا خوان محمد باقر. جس کو حاصل ہوا عرفان محمد. آسمان زمیں والوں میں ان کا چرچا. عرض افلاک ہے شرفدان محمد باقر. جس کو حاصل ہوا عرفان محمد باقر. یہ نسب میں ہے حسینی تو حسب میں ہے حسن. یہ نسب میں ہے حسینی تو حسب میں حسنی. غیر نے پائی ہے
कब शान मोहम्मद बाक़िर। गैर ने पाई है कब शान मोहम्मद बाक़िर। है इल्म का दौर चले दी नो शरीयत चमके। दौर चले इल्म का दौर चले दी नो शरीयत चमके। हर नफस था यही जिसको हासिल हुआ इरफान मोहम्मद बाक़िर। है फीकी पड़ सकती नहीं के शरफ की खुशबू। फीकी पड़ सकती नहीं इनके शरफ की खुशबू। जब हो सादिक गुले रिहान तशनाए इल्म अगर है मेरी दहलीज प्यार। ज़माने को ये ऐलान मोहम्मद बाक़िर। इल्म के लिए तो सभी इमामों ने बुलाया मगर नहीं कोई आया, न किसी ने पूछा। नारे सलवात। इल्म अगर है मेरी दहलीज पे आ था ज़माने को ये ऐलान मोहम्मद बाक़िर। अहले दुनिया को मिली दौलत इनके दर से। अहले दुनिया को मिली दौलत इनके दर से। अरे फक्र फाका रहे मेहमान बस वही दीन की राहों से भी अनजान रहा। बस वही दीन की राहों से भी अनजान रहा। और जो भी रहबर रहा अनजान मोहम्मद बाक़िर। बन गया दिल से सनाख़ान मोहम्मद बाक़िर। जिसको हासिल हुआ इरफान मोहम्मद बाक़िर। बेहतरीन अंदाज में पढ़ा आपने, क्या कहना। भाई को आगे बुलाओ। आगे इधर आइए। महफिल की शरण है हमारे इकबाल रज़ा साहब और इस महफिल में उनकी बहुत मेहनत रही है। जो आप शोरा देख रहे हैं ज़्यादातर की बात मैंने नहीं की, इकबाल भाई ने की थी। ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेकर के आऊँगा। एक नारे सलावत पढ़ें आप। अरे बुजुर्ग कोई नहीं है, खत्म और पढ़ लो।
ये नसब में है हुसैनी तो हसब में मिल जुल के होती है हसनी। लोगों का क्या क्या मिसरे आप अभी समाप्त फरमा रहे थे हाँ। कि एक शेर के साथ मैं अगले शहर को दावत दूंगा कि जिसके बाबा दादा नाना और पोता भी इमाम, जिसके बाबा दादा नाना और पोता भी इमाम, वो मुकद्दस जात दुनिया में फकत बाकिर की है। मुकद्दस जात दुनिया में फकत बाकिर की है। इसी शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ सज्जाद बिजनौरी साहब को, आइए। जो आए और अपने माशाअल्लाह, नारे वही सलवात ऐसी पढ़ें। वही सामने एक नारा सलवात पढ़ें अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी और अपनी जानिब से इमाम ज़माना को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जाता ही नहीं लौट के मायूस सवाली, जाता ही नहीं लौट के मायूस सवाली, मिलती है फरिश्तों को भी खैरात अली से, मिलती है फरिश्तों को भी खैरात अली से। होता ना अगर बीच में पर्दा शबे महराज, हो जाती मोहम्मद की मुलाकात अली से। होता ना अगर बीच में पर्दा शबे महराज, हो जाती मोहम्मद की मुलाकात अली से। और साहिबे ज़र्फ न थे, साहिबे किरदार न थे, साहिबे ज़र्फ न थे, साहिबे किरदार न थे, जो भी अहकाम मोहम्मद के परस्तार न थे, जो भी अहकाम मोहम्मद के परस्तार न थे। बस उन्हीं लोगों पे चलती थी अली की तलवार, जिनके होने के मुसलमान को ये आसार न थे, जिनके होने के मुसलमान को ये आसार न थे, जिनके होने के मुसलमान को ये आसार न थे। मुश्किलाते जिंदगानी से उभरना सीख ले, मुश्किलाते जिंदगानी से उभरना सीख ले। ए मुसलमान हक पे जीना, हक पे मरना सीख ले। ए मुसलमान हक पे जीना, हक पे मरना सीख ले। खुल्द में जाने की हसरत है तो सुन एक काम कर, सिद्क दिल से मातम शब्बीर करना सीख ले। खुल्द में जाने की हसरत है तो सुन एक काम कर, सिद्क दिल से मातम शब्बीर करना सीख ले। और हज़रात एक सलाम का कुछ अशारा आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि मर्तबा देख ए अनजान अबू तालिब का, मर्तबा देख ए अनजान अबू तालिब का, रब के घर बेटा है मेहमान अबू तालिब का, रब के घर बेटा है मेहमान अबू तालिब का। अपनी गोदी में रिसालत और इमामत पाली, दीन अहमद पे है एहसान अबू तालिब का, दीन अहमद पे है एहसान अबू तालिब का। सिर्फ एक सूरह इमरान की ना बात करो, सिर्फ एक सूरह इमरान की ना बात करो, मदहा पूरा है कुरान अबू तालिब का, मदहा पूरा है कुरान अबू तालिब का। जिसने अहमद की इताअत से बगावत की है। इमरान वाला फिर पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा शेर है। सिर्फ एक सूरह इमरान की ना बात करो, सिर्फ एक सूरह इमरान की ना बात करो, मदहा पूरा है कुरान अबू तालिब का। और जिसने अहमद की इताअत से बगावत की है, जिसने अहमद की इताअत से बगावत की है, हो नहीं सकता वो इंसान अबू तालिब का, हो नहीं सकता वो इंसान अबू तालिब का। तो इसमते खानाए काबा को समझना है अगर, इसमते खानाए काबा को समझना है अगर, मर्तबा समझे मुसलमान अबू तालिब का, मर्तबा समझे मुसलमान अबू तालिब का। कोई भी जंग है इस्लाम की दावा है मेरा, कोई भी जंग है इस्लाम की दावा है मेरा, जीत के आया है मैदान अबू तालिब का, जीत के आया है मैदान अबू तालिब का। इस तरह वारिसे कुरान की हिफाजत की है, इस तरह वारिसे कुरान की हिफाजत की है। घर का घर जैसे हो जुज़दान अबू तालिब का, इस तरह घर का घर जैसे हो जुज़दान अबू तालिब का। जब पढ़ी नाते नबी आके अबू तालिब ने, जब पढ़ी नाते नबी आगे अबू तालिब ने, जर्रा जर्रा था मदा खान अबू तालिब का, जर्रा जर्रा था मदा खान अबू तालिब का। करबला होके जो आता है मदीने सज्जाद, करबला होके जो आता है मदीने सज्जाद,
बस वही होता है मेहमान अबू तालिब का, बस वही होता है मेहमान अबू तालिब का। और अल्लाह दो तीन शेर और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मदीना सामरा मक्का नजफ काबा मोहम्मद का, मदीना सामरा मक्का नजफ काबा मोहम्मद का, है रुतबा सारे नबियों से बहुत ऊंचा मोहम्मद का, है रुतबा सारे नबियों से बहुत ऊंचा मोहम्मद का। जुलेखा हुस्ने यूसुफ का कभी इकरार न करती, अगर यूसुफ से पहले देखती चेहरा मोहम्मद का। जुलेखा हुस्ने यूसुफ का कभी इकरार न करती, अगर यूसुफ से पहले देखती चेहरा मोहम्मद का। कोई उसके बराबर हो न जाए सारी दुनिया में, कोई उसके बराबर हो न जाए सारी दुनिया में, न खालिक ने बनाया इसलिए साया मोहम्मद का। कोई उसके बराबर हो न जाए सारी दुनिया में, न खालिक ने बनाया इसलिए साया मोहम्मद का, न खालिक ने बनाया इसलिए साया मोहम्मद का। बहुत अच्छा भाई, सज्जाद भाई क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए माशाल्लाह। जिंदाबाद। देखिए कितनी मदहा महफिल हो रही है आपकी। मदहा खा पूरा है इमरान अबू तालिब का। क्या शेर अभी आप समाप्त फरमा रहे थे? पूरा है इमरान अबू तालिब का। वाह। अब मैं इस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं 2 मिसरे अपने पढ़ूंगा, 4 मिसरे उसके साथ में उस शायर पूरा कलाम पढ़ लीजिए। रब्बे अकबर ने, पता है ना आपको? जनाब फातिमा के हवाले से मैंने ये पढ़ा, लेकिन रब्बे अकबर ने फसाहत में बलागत में लिखी। क्या बात? रब्बे अकबर ने फसाहत, रब्बे अकबर ने फसाहत में बलागत में लिखी, रब्बे अकबर ने फसाहत में बलागत में लिखी, मंजिलत आपकी कुरान की इबारत में लिखी। रब्बे अकबर ने फसाहत में बलागत में लिखी, मंजिलत आपकी कुरान की इबारत में लिखी, और रात भर फातिमा जहरा की सना की मैंने। रात भर फातिमा जहरा की सना की मैंने, मेरी ये रात फरिश्तों ने इबादत में लिखी। मेरी ये रात फरिश्तों ने इबादत में लिखी। इसी 4 मिसरों के साथ मैं जिस शहर को बुलाने जा रहा हूँ, वो एक सहाफ़ी भी हैं और ब्यूरो चीफ हैं, दैनिक सियासी तकरीर जो उर्दू हिंदी अखबार निकलता है, अंजुम जाफरी साहब, आप सब लोग वाकिफ हैं। एक नारे सलावत से आप उनका इस्तकबाल करें। अंजुम जाफरी साहब बहुत अच्छे कलाम पेश करते हैं, एक नारे सलावत। अच्छे पढ़ने वाले मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं हमारे सब माशाल्लाह। सलामत रखें आप। आप भी तहत में पढ़ूंगा, अच्छा पढ़ोगे इंशाल्लाह। क्या क्या चलाऊं? मुझे बता, मैं तहत वालों में गिरा हुआ हूँ आजकल। जी तरन्नुम बीमार है वैसे। नहीं, मैं माजरत खा हूँ सबसे पहले देर से आने के लिए। हम लोग भाई ने कहा कि दूसरी स्टेट से आए, राज्य बदल गया है। आसिफ भाई अच्छा, एक कोशिश की एक मिसरा बज़्म फरज़दक में है कि जवाबे ताने अख्तर विलादत फातिमा की है। सुबह कहा है, शाम को पढ़ रहा हूँ, इसलिए के ख्वाहिशमंद भी हूँ। हालांकि इसके मतलब में 2-3 तरमीम पहले ही कर चुका हूँ। एक और तरमीम के साथ पेश कर रहा हूँ कि मुहिब्बे आले अहमद को गलती ये हुई, मिसरा वो भी था, मिसरा ये भी था। मुझे इमाम बाक़िर का पढ़ना था और दूसरा नहीं जो तारीख है उसके हिसाब से इमाम बाक़िर का है। एक बार चल के देखो बाक़िर की जिंदगी में, ये मिसरा है। पेश खिदमत है कि हर फूल खिल रहा है, खुशबू है हर कली में। हर फूल खिल रहा है, खुशबू है हर कली में, आमद है 5वें की या गुलशने अली में। फूल खिल रहा है, खुशबू है हर कली में, आमद है 5वें की अब गुलशने अली में, और दोनों जहां की नेमत हासिल उन्हीं से होगी।
दोनों जहां की नेमत हासिल उन्हीं से हासिल उन्हीं से होगी, एक बार चल के देखो बाकी की दोनों जहां की नेमत हासिल उन्हीं से होगी, एक बार चल के देखो बाकर की जिंदगी में। और शब्बीर के हैं पोते ज़ैन और लिबा के बेटे, शब्बीर के हैं पोते ज़ैन और लिबा के बेटे, अब्बास के हैं तेवर इनमें भी कम सिनी में, अब्बास के हैं तेवर इनमें भी कम सिनी में। और भटका हुआ जो राही पहुंचेगा इनके दर पर। मुलाहिज़ा फरमाए, भटका हुआ जो राही पहुंचेगा इनके दर पर, होंगी मुरादे पूरी सब उसकी एक घड़ी में, होंगी मुरादे पूरी। भटका हुआ जो राही पहुंचेगा इनके दर पर, होंगी मुरादे पूरी सब उसकी एक घड़ी में। और जो थी हराम दिरहम उसको अलग निकाला, जो थी हराम दिरहम उसको अलग निकाला। एजाज सब ने देखा बाकर का कम सीनी में, एजाज सब ने देखा बाकर का कम सीनी में। और उगले जमी जवाहर पल भर जो देख ले ये, उगले जमी जवाहर पल भर जो देख ले ये, मुफलिस को भी तवंगर कर दे ये एक घड़ी में। लेकिन मैं खालिस तहत के अंदाजे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ अगर ना पढ़ पा रहा हूँ। उगले जमी जवाहर पल भर जो देख ले ये, मुफलिस को भी तवंगर कर दे ये एक घड़ी में। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मौलाए दो जहां और मेहदी आखिरी तक, मौलाए दो जहां और मेहदी आखिरी तक, मदहो सना है उनकी हर सू गली गली में, मदहो सना है उनकी। देखिए यहाँ भी हो रही है, भाई को नहीं पता था, यही इसी को ज़हन में रखते कि हर जगह जिक्र इमाम होता है। मदहो सना है उनकी हर सू गली गली में। और इस सिलसिले का आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अशआर कह ना पाया फिर उनकी शान में कुछ, अशआर कह ना पाया अगर उनकी शान में कुछ भी नहीं रखा है फिर मेरी शायरी में, कुछ भी नहीं रखा है फिर मेरी शायरी में। मख्ता मुलाहिज़ा फरमाया कि यूं तो गुजारे भर को करता हूँ काम अंजुम, यूं तो गुजारे भर को करता हूँ काम अंजुम, हूँ सुबह शाम लेकिन मौला की नौकरी में, सुबह शाम लेकिन यूं तो गुजारे भर को करता हूँ काम अंजुम, हूँ सुबह शाम लेकिन मौला की नौकरी में। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। इजाजत है 5-6 मुलाहिज़ा फरमाए कि दिखावे की जो करते हैं इबादत हो नहीं सकती, दिखावे की जो करते हैं, दिखावे की जो करते हैं इबादत हो नहीं सकती, खुदा की ऐसे बंदों पर इनायत हो नहीं सकती। दिखावे की जो करते हैं इबादत हो नहीं सकती, खुदा की ऐसे बंदों पर इनायत हो नहीं सकती। जो नफरत हो अगर दिल में मोहब्बत हो नहीं सकती, जो नफरत हो अगर दिल में मोहब्बत हो नहीं सकती, खुदा के दीन से शैता को उल्फत हो नहीं सकती। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए कि तू नाजायज तरीके से कमाले कितनी ही दौलत, नाजायज तरीके से तू नाजायज तरीके से कमाले कितनी ही दौलत, ये सच्चाई है इसमें खैर और बरकत। नाजायज तरीके से कमाले कितनी ही दौलत, ये सच्चाई है इसमें खैर और बरकत हो नहीं सकती। और जमा करनी है तो कर ले मोहब्बत आले अहमद की, जमा करनी है तो कर ले मोहब्बत
आले अहमद की, जहां में इससे बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। वाह वाह नहीं सकती, जहां में इससे दुरूद पढ़ दे मोहम्मद, जहां में इससे बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। और अली के चाहने वाले हुआ करते हैं कुछ ऐसे। डॉक्टर साहब, अली के चाहने वाले, अली के चाहने वाले हुआ करते हैं कुछ ऐसे, अकीदे में कभी इनसे तिजारत हो नहीं सकती, अकीदे में कभी उनसे तिजारत हो नहीं सकते। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि अमल जिसका है आला उसको ही मौला बुलाते हैं। अमल जिसका है आला उसको ही मौला बुलाते हैं, कैसे वैसों को उनकी जियारत हो नहीं सकती, कैसे वैसों को उनकी जियारत हो नहीं सकती। और दरे शब्बीर के बदले दरे जन्नत खरीदूं, वाह दरे शब्बीर के बदले दरे जन्नत खरीदूं मैं, या नुकसान की मुझसे तिजारत हो नहीं सकती, या नुकसान की मुझसे तिजारत। दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद वाले, दरे शब्बीर के बदले दरे जन्नत खरीदूं मैं, मियां नुकसान की मुझसे तिजारत हो नहीं सकती। और अली असगर का लेकर नाम दी बच्चों को है घुट्टी, अली असगर का लेकर नाम दी बच्चों को है घुट्टी, यकीनन है ज़बां में इनके लुकनत हो नहीं सकती, यकीनन है ज़बां में इनके लुकनत हो नहीं सकती। और मैं छोड़ते हुए हाँ, कि वो जिस महफिल में जिक्र हैदर करार होता है, वो जिस महफिल में जिक्र हैदर करार होता है, बरसती है वहाँ रहमत कराहत हो नहीं सकती, बरसती है वहाँ रहमत कराहत हो नहीं सकती। और वक्त मुलाहिजा फरमाएं कि सरे नेज़ा हुसैन इब्ने अली का मौजज़ा अंजुम। इकबाल भाई, सरे नेज़ा हुसैन इब्ने अली का मौजज़ा अंजुम, कोई भी करना चाहे यूं तिलावत हो नहीं अंजुम जाफरी साहब को आप बता समाज 3 शुरा हमारी फहरिस्त में हैं, जो कि किसी भी महफिल की कामयाबी का ज़ामिन होते हैं। मैं बस बिना किसी तमीज़ के एक शेर पढ़ के जिस शुरा को आपके हवाले करना जो कि नाजिम भी हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं कि बाकिर का चेहरा देखकर कहते थे अहले दिल, बाकिर का चेहरा देख के कहते थे अहले दिल, पहली रजब को देख लिया 14वीं का चांद। बाकिर का चेहरा देख के कहते थे अहले दिल, पहली रजब को देख लिया 14वीं का चांद। ये एक बहुत खूबसूरत शायर हमारे मोहसिन इमरान साहब एक नारे सलावत से अच्छा हाँ देखिए, हमारे मूसी भाई ने मैसेज तो डाला था जश्न अहले बैत के लिए, लेकिन आज की तारीख जो है तो मखसूस है 5वीं इमाम के लिए। बड़ी अच्छी लगा कि सभी लोग हाँ, हालांकि इन्होंने बहुत से बाप खोल दिए थे, ये मैसेज डालने के बाद में, लेकिन खुलेंगे मैं पढ़ूंगा नहीं इसमें, सिर्फ आज की तारीख मुनासिबत से ही पढ़ूंगा, कुछ शेर पढ़ूंगा बस। बार एक कथा पेश खिदमत है, हम एक बार सलावत हैं मिलजुल के डॉक्टर साहब अर्ज करता हूँ कि हर एक मुअर्रिख ने किया है यही तहरीर, हर एक मुअर्रिख ने किया है यही तहरीर, इस दर पर समझ जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। हर एक मुअर्रिख ने किया है यही तहरीर, इस दर पर समझ जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। पढ़ता हूँ मैं जब हजरत बाकिर के फजाइल, सीने में मुनाफिक के उतर जाती है शमशीर। पढ़ता हूँ मैं जब हजरत बाकिर के फजाइल, सीने में मुनाफिक के उतर जाती है शमशीर। अब एक मतलब कुछ शेर मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। अर्ज करता हूँ कि अली के घर में जब आए मोहम्मद बाकिर, अली के घर में जब आए मोहम्मद बाकिर,
खजाना इल्म का लाए मोहम्मद बाकिर। अली के घर में जब आए मोहम्मद बाकिर, खजाना इल्म का लाए मोहम्मद बाकिर, के मिले हैं यूं तो जहां में मुझे बहुत आलिम, मिले हैं यूं तो जहां में मुझे बहुत आलिम, न भाया कोई सिवाय मोहम्मद बाकिर। मिले हैं यूं तो जहां में मुझे बहुत आलिम, न भाया कोई सिवाय मोहम्मद बाकिर। और पढ़ी जो इल्म की तारीख, मोहम्मद बाकिर, के पढ़ी जो इल्म की तारीख गौर से मैंने, पढ़ी जो इल्म की तारीख गौर से मैंने, दिलो दिमाग पर छाए मोहम्मद बाकिर। के पढ़ी जो इल्म की तारीख गौर से मैंने, दिलो दिमाग पर छाए मोहम्मद बाकिर। के चिराग जुल्म सितम के न होंगे अब रोशन, चिराग जुल्म सितम के न होंगे अब रोशन, चलेगी ऐसी हवाए मोहम्मद बाकिर, चलेगी ऐसी हवाए मोहम्मद बाकिर। वो दिल के जिसमें हो बुग़्ज़े अली क़याम पजीर, वो दिल के जिसमें हो, वो दिल के जिसमें हो बुग़्ज़े अली क़याम पजीर, वहाँ पर कैसे समाए मोहम्मद बाकिर। वो दिल के जिसमें, वो दिल के जिसमें है बुग़्ज़े अली क़याम पजीर, वो दिल के जिसमें है बुग़्ज़े अली क़याम पजीर, वहाँ पर कैसे समाए मोहम्मद बाकिर, वहाँ पर कैसे समाए मोहम्मद बाकिर। के ज़माने वालों की दौलत से मुझको क्या मतलब, ज़माने वालों की दौलत से मुझको क्या मतलब, हैं हम अज़ल से गदाए मोहम्मद बाकिर, हैं हम अज़ल से गदाए मोहम्मद बाकिर। ज़माने वालों की दौलत से हमको क्या मतलब, हैं हम अज़ल से गदाए मोहम्मद बाकिर। कि वो शख्स होता है रब की निगाह में भी जलील, वो शख्स होता है रब की निगाह में भी जलील, नजर से जिसको गिराए मोहम्मद बाकिर। वो शख्स होता है रब की निगाह में भी जलील, नजर से जिसको गिराए मोहम्मद बाकिर। तो वो शख्स होता है रब की निगाह में भी जलील, नजर से जिसको गिराए मोहम्मद बाकिर। है जिसको सुन के हमारी समाअतें महसूस, है जिसको सुन के हमारी समाअतें महसूस, ये मनक़बत है बराए मोहम्मद बाकिर। है जिसको सुन के हमारी समाअतें महसूस, वो मनक़बत है बराए मोहम्मद बाकिर, वो मनक़बत है बराए मोहम्मद बाकिर। के पुकारा मैंने इन्हें जब किसी भी मुश्किल में, पुकारा मैंने इन्हें जब किसी भी मुश्किल में, मदद के वास्ते आए मोहम्मद बाकिर। पुकारा मैंने इन्हें जब किसी भी मुश्किल में, मदद के वास्ते आए मोहम्मद बाकिर, मदद के वास्ते आए मोहम्मद बाकिर। और ये सिर्फ तुम पर इन्हीं का करम है इमरान, ये सिर्फ तुम पर इन्हीं का करम है ए इमरान, जो तुमने की है सनाए मोहम्मद बाकिर, जो तुमने की है सनाए मोहम्मद मुंशी भाई आपने पढ़ लिया पूरा? मैंने पढ़ लिया था, नहीं मैंने पढ़ लिया था, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, दूर जाना है। मैंने वो गैप आपका वाला फील कर दिया था बीच में। अच्छा ठीक है। हमारे बीच एक ऐसे शायर मौजूद हैं जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, जिस महफिल में जाते हैं उसकी कामयाबी का सेहरा उनके सर हो जाता है। ये यूं कहूँ वो दरख्त के जिससे शेर झड़ते हैं, अगर आप कभी भी हिलाओ तो शेर जो है वो, एक ऐसा शायर जनाब आसिफ बिजनौरी साहब, आसिफ जलाल बिजनौरी साहब, एक शेर के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। अपने 4 मिसरे सुनाऊंगा सिर्फ अंजुम भाई के फिक्र की शाखों पर मिधत का समर बन जाएगा। फिक्र की शाखों पर मिधत का समर, आसिफ भाई के लिए पढ़ लूंगा कि फिक्र की शाखों पर मिधत का समर बन जाएगा, मनक़बत ख्वानी का पौधा जब समर बन जाएगा, शजर बन जाएगा। मनक़बत ख्वानी का पौधा जब शजर बन जाएगा, और जब अली नजरे इनायत आपकी हो जाएगी, जब अली नजरे इनायत आपकी हो जाएगी, कतरे नाचीज भी उस दिन गौहर बन जाएगा, कतरे नाचीज भी उस दिन गौहर बन जाएगा। आसिफ जलाल बिजनौरी साहब, एक नारे सलवात से आप जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ और आगाज़ करता हूँ मदारा समातुल्लाह में।
کہ کل ایمان کا ایمان محمد باقر، کیا کہنے، کل ایمان کا ایمان محمد باقر، عدل و انصاف کی میزان محمد باقر، محمد باقر، علم و آداب کی پہچان محمد باقر، پانچواں بولتا قرآن، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کل ایمان کا ایمان محمد باقر، پانچواں عدل و بولتا انصاف کی قرآن، میزان محمد باقر، علم و آداب کی پہچان محمد باقر، پانچویں بولتا قرآن محمد باقر، غیر ممکن ہے کہ پہچانے زمانے والے، غیر ممکن ہے کہ پہچانے زمانے والے، سب محمد ہے محمد کے گھرانے، پہچانے زمانے والے، پہچانے زمانے والے، سب محمد ہے محمد کے گھرانے والے۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ نشست کے حساب سے ایسے اشعار پڑھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ مسئلہ جب بھی میں اپنی بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی کبھی کسی پریشانی محسوس ہوتا ہوں تو مسئلہ دہراتا ہوں، میری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پروردگار آپ سب کی بھی ہوں، کہ یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی، یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی، یہ وہ مشکل ہے جو آسان نہیں ہو پائی، یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی، یہ وہ مشکل ہے جو آسان نہیں ہو پائی، خاک گوندھی نہ گئی عشق علی میں جب تک، خاک گوندھی نہ گئی عشق علی میں جب تک، آدمی ہو گئی انسان نہیں ہو پائی، یا علی آپ کی پہچان نہیں ہو پائی، یہ وہ مشکل ہے جو آسان نہیں ہو پائی، خاک گوندھی نہ گئی عشق علی میں جب تک، آدمی ہو گئی انسان نہیں ہو پائی، آدمی ہو گئی انسان نہیں ہو پائی، آدمی ہو گئی انسان نہیں ہو پائی، احتیاط اتنی علی نے شب ہجرت رکھی، احتیاط اتنی علی نے شب ہجرت رکھی کہ وقت کی زلف پریشان نہیں ہو پائی، اتنی علی نے شب ہجرت رکھی، احتیاط اتنی علی نے شب ہجرت رکھی، وقت کی زلف پریشان نہیں ہو پائی، شعر سنیں، وقت کی زلف پریشان نہیں ہو پائی، دست عادل ہے تو جبریل کو بھی ڈر نہ لگا، دست عادل ہے تو جبریل کو بھی ڈر نہ لگا، تیغ حیدر بھی پشیمان نہیں ہو پائی، دست عادل ہے تو جبریل کو بھی ڈر نہ لگا، تیغ حیدر بھی پشیمان نہیں ہو پائی، تیغ حیدر بھی پشیمان نہیں ہو پائی، مثل حسنین فضیلت میں کسی کی اولاد، مثل حسنین فضیلت میں کسی کی اولاد آج تک لولو و مرجان نہیں ہو پائی، مثل حسنین فضیلت میں کسی کی اولاد آج تک لولو و مرجان نہیں ہو پائی، معتبر یوں تو بہت سی ہیں کتابیں لیکن، معتبر یوں تو بہت سی ہیں کتابیں لیکن کوئی ہم رتبہ قرآن نہیں ہو پائی، کوئی ہم رتبہ قرآن نہیں ہو پائی، کوئی جنت بھلا کیا ہوگی علی کی قیمت، کوئی جنت بھلا کیا ہوگی علی کی قیمت، کوئی جنت بھلا کیا ہوگی علی کی قیمت، قیمت بوذر و سلمان نہیں ہو پائی، بھلا کیا ہوگی علی کی قیمت، قیمت بوذر و سلمان نہیں ہو پائی، تو معجزہ یہ ہے حسین ابن علی کی آواز، معجزہ یہ ہے حسین ابن علی کی آواز، قتل کے معجزہ یہ ہے حسین ابن علی کی آواز، قتل کے بعد بھی بے جان نہیں ہو پائی، معجزہ
हुसैन इब्न अली की आवाज कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। मिस्ल हसनैन फजीलत में किसी की औलाद आज तक लूलू और मरजान नहीं हो पाई। मौजज़ा ये है हुसैन इब्न अली की आवाज कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। हमको एक ऐसी मौजज़ा ये है हुसैन इब्न अली की आवाज कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। मदे हैदर में ज़बां मैंने न जब तक खोली, मदे हैदर में ज़बां मैंने न जब तक खोली, मेरी आसिफ कोई पहचान नहीं हो पाई। हैदर में ज़बां मैंने न जब तक खोली, मेरी आसिफ कोई पहचान नहीं हो पाई। हक न था तो अदल की मीज़ान में कुछ भी न था। हक न था तो अक्ल की हक न था तो अदल की मीज़ान में कुछ भी न था। सिर्फ था वहमो गुमा इम्कान में कुछ भी न था। सिर्फ था वहमो गुमा इम्कान में कुछ भी न था। नुक्ता-ए बा को हटाकर तजुर्बे के तौर पर, नुक्ता-ए बा को हटाकर तजुर्बे के तौर पर गौर से देखा तो फिर कुरान में कुछ भी न था। नुक्ता-ए बा को हटाकर तजुर्बे के तौर पर गौर से देखा तो फिर कुरान में कुछ भी न था। बेहयाई झूठ मक्कारी दगा इसके सिवा बाखुदा कसरे अबू सुफियान में कुछ भी न था। बाखुदा कसरे अबू सुफियान में कुछ भी न था। बढ़ रहा था इस तरफ माले गनीमत और उधर, बढ़ रहा था इस तरफ माले गनीमत और उधर रोने वालों के सिवा मैदान में कुछ भी न था। रोने वालों के सिवा मैदान में कुछ भी न था। वो तो कहिए हुर्ने सरवर, वो तो कहिए हुर्ने सरवर से मुआफी मांग ली, वो तो कहिए हुर्ने सरवर से मुआफी मांग ली, वरना खाको खूं के रेगिस्तान में कुछ भी न था। वरना खाको खूं के रेगिस्तान में कुछ भी न था। सब्र के ऐवान में था जश्न फतेह करबला, सब्र के ऐवान में था जश्न फतेह करबला, जुल्म के उजड़े हुए ऐवान में कुछ भी न था। जुल्म के उजड़े हुए ऐवान में कुछ भी न था। बाबे शहरे इल्म की आसिफ इनायत हो गई, वरना अहले इल्म के अज़हान में कुछ भी न था। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। मोजिज़ा ये भी है, मुजिज़ा ये है हुसैन इब्न अली की आवाज कत्ल के बाद भी जान नहीं हो पाई। सूरत अशार आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। अब मैं इस नज़्म के सिलसिले के आखिरी शायर उस्ताद शुअरा को मैं बुलाऊंगा। इसी ज़मीन के एक शेर के साथ मैं उनसे दावत दूंगा कि सर तन से उतर जाएगा, नेज़े पर चढ़ेगा। सर तन से उतर जाएगा, नेज़े पर चढ़ेगा। मैं खुश हूँ, मेरा कद तो अभी और बढ़ेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर तन से उतर जाएगा, नेज़े पर चढ़ेगा। मैं खुश हूँ, मेरा कद तो अभी और बढ़ेगा। आइए समाअत फरमाएं डॉक्टर शमसुल हसन साहब को। बैठ के पढ़िए, हमें जहाँ कहिए, लेकिन सब लोग इधर आवाज ठीक से जैसे तो ये असल में हाँ मैं मिंबरी पे बैठ के पढ़ता हूँ, लेकिन क्या सलवात बाबा से बना राय ज़हूल इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। सदा ये आती है कानों में खुशगवार कोई, सदा ये आती है कानों में खुशगवार कोई, दुरूद से नहीं अच्छा है कारोबार।
کلام کرتے ہیں شفاف ذہنیت والے، کلام کرتے ہیں شفاف ذہنیت والے، زبان کھول نہیں سکتا داغدار کوئی، فدق کا فیصلہ تحریر سے نہیں ہوگا، فدق کا دیکھیں دونوں طریقے سے کہا جائے، فدق بھی کہتے ہیں اردو میں، فدق بھی کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، فدق کا فیصلہ تحریر سے نہیں ہوگا، لکیر کھینچے گی شمشیر آبدار کوئی، لکیر کھینچے گی شمشیر آبدار کوئی، اور علی کی تیغ قیامت کے دن محبت سے ہمیں سلام کرے گی دعا کے لہجے میں، اور مطالبہ یہی تخت یزید کرتا تھا، کوئی کلام کرے فاطمہ کے لہجے میں، اور گروہ ظلم میں کیا کوئی مرد تھا ہی نہیں، جواب کیوں نہ دیا مرتضیٰ کے لہجے میں، جواب کیوں نہ دیا، بلندیوں پہ کبھی متقی نہیں ہوتے، اگر امام ہمارے، اگر محمد باقر نقی نہیں ہوتے اور ہر ایک شہر میں کعبے بنا لیے جاتے، خدا کے گھر میں جو پیدا علی نہیں ہوتے۔ انکار کیجئے نہ خدا کی کتاب سے، انکار کیجئے نہ خدا کی کتاب کا، اس کے رموز عقل کے ہادی سے پوچھئے، کتنی عظیم دین سے بغاوت کی ہے سزا، کتنی عظیم دین سے بغاوت کی ہے سزا، کتنی عظیم دین سے بغاوت کی ہے سزا، سید وسیم رضوی تیاگی سے پوچھئے، بات بھیجئے محمد والے عاشور کے دن عید منانے نہیں دیں گے، عاشور کے دن عید منانے نہیں دیں گے، بے وقت کی شہنائی بجانے نہیں دیں گے، تم اپنے اماموں کو بدلتے رہو لیکن ممبر تمہیں مسجد سے ہٹانے نہیں دیں گے۔ تھوڑا پڑھا مگر بہت اچھا پڑھا صاحب آپ کہہ رہے ہیں پڑھیے بہت ہے، پڑھیے آپ کے پاس بہت ہے، مجھے تختی لے گا بڑا گھر کے پاس خوبصورت اشعار آپ حضرات فرما رہے تھے، نظم کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے قبل اس کے کہ میں قبلہ کو نصر کے لیے اور دعائیہ کلمات اور امام باقر کی حیات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کروں۔ حضرات کچھ لوگ یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں، میں نے بھی دیکھا تو مجھے وہ دو شعر یاد آ گئے جو جب میں دلی آیا تھا میں نے کہے تھے، اور یقیناً بھائی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج صاحب آباد میں بھی ایک خوبصورت وضع خانہ ہے، لیکن جب کوئی اپنے گاؤں سے دلی آتا ہے یا کسی ایسے شہر میں جاتا ہے تو اس کو اس حوالے سے بس دو شعر، اس کے بعد انہی اشعار کے ساتھ میں مدعو کروں گا کہ اجنبی شہر میں بس ایسا ایک ٹھکانہ ملے، اکثر ہوتا ہوں میں شعر بہت لوگ کہ اجنبی شہر میں بس ایسا ایک ٹھکانہ ملے، شہ کے ماتم کے لیے جس میں عزا خانہ ملے، شہ کے ماتم کے لیے جس میں عزا خانہ ملے، اور میں بھی جنت میں مکان اپنا بنا لوں موسی، میں بھی جنت میں مکان اپنا بنا لوں موسی، مجھ کو بھی گر کوئی بہلول سا دیوانہ ملے، مجھ کو بھی گر کوئی بہلول سا دیوانہ ملے۔ میری گزارش ہے عالی جناب مولانا شہوار حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ اس محفل کے صدر بھی ہیں ہماری، اور اپنے دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں اور اس محفل کو اگلے سال کے لیے ملتوی ہونے کا بھی اعلان کریں۔ ہاں سبحان اللہ۔ آپ اوپر بیٹھ جائیے تھوڑا ایک اچھا رہے گا پائیدان ہاں گدی ہے
बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बावाज़ बुलंद सलवात लाए ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व कुल्लु शैइन अहसनहु फ़ी इमामिन मुबीन हज़रात, आप तमाम हज़रात की खिदमत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलावत यकीनन इंतहाई मुसर्रत हो रही है कि आज मुख्तसरी अंदाज में सही, लेकिन एक खुशी इस बात की है कि हम जहाँ भी बैठते हैं ज़िक्र अहले बैत वहीं हो जाता है। चाहे हम अपने वतन में हों, चाहे हम परदेश में हों, जहाँ भी हों, ज़िक्र अहले बैत उसी अंदाज से करने की कोशिश करते हैं जिस अंदाज से हम अपने वतन में करते हैं। यकीनन ये छोटा सा जश्न कि जिसके लिए आप हज़रात दूर दूर से तशरीफ़ लाए और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बारगाह में सिराज अक़ीदत पेश किया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि शुअरा कराम ने जो कलाम पेश किए वो ममदूह की शान में पेश किए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे मुक़र्रिर हो, चाहे ज़ाकिर हो और चाहे शायर, महफिल जिस इमाम से मखसूस हो उन्हीं का जिक्र होना चाहिए। इसलिए कि बहुत से लोग गुरेज ये कहकर कर लेते हैं कि साहब सबके सब मोहम्मद हैं, तो जिसका चाहे हम जिक्र कर लें। बेशक हैं सब मोहम्मद, लेकिन किसी इमाम की हक तलफी नहीं किसी इमाम की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि आज इमाम का दिन है, इमाम मोहम्मद बाक़िर का, तो उनका तज़किरा होना चाहिए। अब इमाम अली नक़ी की तारीख आएगी तो उनका तज़किरा होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि तो मुक़र्रिरीन तैयारी करेंगे और उन्होंने चीज़ें जो हैं सामने पेश करेंगे, और दूसरे जो हैं शुआरा हज़रात भी नया नया कलाम कहेंगे और उनका कलाम भी बढ़ता चलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम सब लोग इस सिलसिले में कोशिश करें, जितने भी मदाखां हैं, तो इंशाअल्लाह सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया के सामने सही माना में पेश की जा सकती है। एक सलावत भेजो। यकीनन आज की तारीख पहली रजब तारीख विलादत इमाम बाक़िर। आपका नाम मोहम्मद था और आपका लक़ब बाक़िर। बाक़िर के माना क्या है बच्चों को बता दूं। बाक़िर के माना है सीने को चाक करने वाला, इसलिए आपका लक़ब बाक़िरुल उलूम है, यानी उलूम के सीने को चाक करने वाला। इमाम ने नए नए उलूम का इंकशाफ किया और दुनिया के सामने इस तरीके से उलूम को पेश किया कि दुनिया हैरान रह गई कि वाक़ई ये सिवाय अहले बैत के खानवादे के अफराद के अलावा इस तरह के उलूम दुनिया के सामने पेश नहीं किए जा सकते। चुनांचे आप देखें कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम था हाकिम बिन उतैबा। हाकिम बिन उतैबा, उसको अपने इल्म पर बहुत गर्रा था, बहुत मगरूर आलिम, बहुत अकड़ा अकड़ा रहता था। कैसा मेरे इल्म का कौन मुकाबला कर सकता। अरब में हर तरफ उसी का चर्चा। लेकिन एक मरतबा उसका मुकाबला इमाम से हुआ। अभी इमाम की उम्र कम थी, जो उसका मुकाबला हुआ है तो रावी कहता मैंने देखा कि इतना बड़ा आलिम
उस नौजवान के सामने ऐसा लग रहा था कि जिसकी इसकी कोई इल्मी हैसियत है ही नहीं। जब गुफ्तगू शुरू हुई है तो या तो इतना बड़ा आलिम बन रहा था वो, लेकिन जब इमाम ने उससे गुफ्तगू की है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तिफल मकतब हो और उस्ताद के सामने बैठे इल्म हासिल कर रहा हो। क्या कहना और उसी के साथ साथ आप देखें कि इमाम ने जो गैरों को अपना बनाया वो दो तरीकों से, एक तो इल्म का मुजाहरा करके और दूसरे अपने अखलाक और किरदार के जरिए। गौर फरमाया किस तरीके से आपने इल्म का मुजाहरा किया और किस तरीके से गैर अपने हुए। एक मर्तबा इमाम में मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन एक हक अदा करना है, कुछ तो बयान होना ही है। इमाम गुजर रहे थे, देखा कि रास्ते में एक मजमा है, भीड़ है लगी हुई है। इमाम ने लोगों से पूछा, भाई ये मजमा क्यों जमा है? तो किसी ने जवाब दिया कि यहाँ पर एक माबद है जहाँ पर ईसाइयों का आलिम रहता है और वो साल में एक मर्तबा अपने इबादत खाने से बाहर आता। हम लोग उसी की ज़ियारत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा, साल में बाहर निकलता कहाँ? इमाम भी उस मजमे में जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद वो अपने इबादत खाने से माबद से बाहर निकला और निकलने के बाद उसने मजमे को देखा, सबके ऊपर उसने निगाह दौड़ाई। लेकिन जब इमाम की तरफ उसने देखा तो एक मर्तबा उसकी निगाह इमाम पर रुकी और रुकने के बाद उसने फौरन सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप क्या हम में से हैं, यानी ईसाई हैं? इमाम ने कहा नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। कहा फिर कौन है आप? कहा कि मेरा ताल्लुक उम्मत मरहूमा में से है, यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि अब आप देखें, उससे सवाल करता है, कहता है कि क्या आप आलिम हैं? क्या आप आलिम हैं? अब इस सवाल का जो जवाब इमाम ने दिया, इस सवाल का जवाब यही होगा, या तो कहें इमाम कि हाँ मैं आलिम हूं, या ये कहें कि जवाब यही होना आलिम या जाहिल है? लेकिन इमाम ने जो जवाब दिया, किस अंदाज से जवाब दिया? इमाम ने फरमाया कि मैं जाहिल नहीं हूं। मैं जाहिल नहीं हूं। मैं जाहिल नहीं हूं। ये फलसफी जवाब सुनकर वो हैरान रह गया कि आखिर कौन इंसान है कि इसका जवाब तो सिर्फ ये होना था कि आलिम हूं या जाहिल हूं बस। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया कि मैं जाहिल नहीं हूं बस। एक मर्तबा कहता कि अच्छा फिर आप आलिम हैं। ये होता है इल्म। जो अपनी जबान से कहे मैं आलिम हूँ वो आलिम नहीं होता है, बल्कि जिसको दूसरा कहे कि ये आलिम है वो आलिम। तो उसने कहा कि हाँ आप आलिम हैं। कहा कि क्या इजाजत है कि मैं आपसे कोई सवाल कर लूं? बस जैसे ही उसने कहा कि हाँ इजाजत है कोई सवाल करूं, तो इमाम ने फरमाया हाँ जो चाहे पूछना हो पूछ लो। तुम पूछ सकते हो, जो सवाल करना हो कर लो। वही अंदाज, वही लबो लहजा जो दादा का था कि जो चाहे पूछना हो पूछ लो, वही अंदाज इमाम का, पूछना हो पूछ लो। अब जो उसने सवाल किया, एक मर्तबा कहता है कि आप ये बताइए कि वो कौन सा वक्त है कि जिसका शुमार ना दिन में होता है ना रात में होता है। दूसरा सवाल ये बताइए कि वो दो भाई कौन थे कि जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे। एक की उम्र 50 साल थी और एक की उम्र 150 साल। सारा मजमा देख रहा। तीसरा सवाल, क्या भी बताइए आपका अकीदा ये है कि जन्नत में नेमतें हैं, जन्नत में नेमतें खाने वाले खाएंगे, तो जब जन्नत में नेमतें खाएंगे तो उनको हाजत भी होगी, बालो बराज भी होगा। तो जन्नत पाको पाकीज़ा है, वहां पर इसका क्या होगा?
इसकी कोई मिसाल दीजिए। चौथा सवाल, क्या आपका अकीदा ये है कि जन्नत की नेमतें इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होंगी? इसकी कोई मिसाल दुनिया में मौजूद है? इमाम सुनते रहे। कहा होगा सवाल? कहा जी हाँ, जवाब दीजिए। सारा मजमा इमाम को देख रहा है, कोई पहचानता नहीं था, सब देख रहे हैं कि आखिर कौन शख्स है कि जिससे इतने मुश्किल सवालात हो रहे हैं कि जिसका जवाब देना आसान नहीं है। सब हैरान देख रहे हैं। पहला सवाल क्या था कि वो कौन सा वक्त है कि जिसका शुमार ना दिन में होता है ना रात में होता है? इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, सुनो भाई, वो वक्त है कि जो तुलुए आफताब से पहले का वक्त होता है, जिसको सहर कहते हैं। वो वक्त होता है कि जिस वक्त वो इंसान के जिसको सारी रात नींद ना आई हो, उस वक्त उसको सुकून मिलता है। वो इंसान जो रात भर परेशान रहा हो और दर्द में घबरा रहा हो, उस शख्स को सुकून मिलता है। तो वो वक्त जन्नत का वक्त है कि जो तुलुए आफताब से पहले का वक्त होता है। दूसरा सवाल कि वो दो भाई कौन थे कि जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे, एक की उम्र 50 साल, एक की उम्र 150 साल? कहा कि वो अजीज और उजैर थे। जनाब उजैर का तज़किरा कुरान में मौजूद है कि जब जनाब उजैर की उम्र 50 साल हुई तो अल्लाह ने उनके ऊपर मौत तारी कर दी और 100 साल तक वो सोते रहे। सारा मजमा हैरान देख रहा है। तीसरा सवाल कि जन्नत की नेमतें खत्म नहीं होंगी, उसकी कोई दुनिया में मिसाल? कहा कि अगर एक चिराग से कितने भी चिराग जला दिए जाएं, उस चिराग की लौ खत्म नहीं होती, उसकी रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ता। चौथा सवाल कि जन्नत में मेवे खाए जाएंगे, बोलो बरास का क्या होगा, हजत का क्या होगा, उसकी कोई मिसाल? कहा कि उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे शिकम मादर में बच्चा कि जो ग़िज़ा खाता है लेकिन बोलो बरास की आदत नहीं होती है। एक सलावात भेजो बस। जैसे इमाम ने ये जवाब दिए वह हैरान परेशान एक मर्तबा करीब में आया और करीब में आने के बाद कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आप हुज्जतुल्लाह हैं। आप देखें कि किस तरीके से वो ईसाई आलिम जिसको देखने के लिए लोग जमा थे, साल भर में बाहर आता था वो अपने महाबत से, और इमाम ने जैसे इल्म का मुजाहरा किया वो इमाम का चाहने वाला हो गया मुसलमान। दूसरा तरीका जो इमाम ने अपनाया वह था अखलाक। ये सीरत अहले बैत क्यों बयान की जाती है, ये महाफिल ये मजालिस क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, खाली इससे कुछ सीखना भी है हमको कि अहले बैत का क्या मैसेज था, क्या पैगाम था। इसलिए महफिल है और ये मजालिस का इनेकाद किया जाता है। अखलाक का मुजाहरा, इमाम का दर्स जब होता था उसमें सैकड़ों लोग शिरकत करते थे। मुख्तलिफ उलूम की तालीम इमाम दिया थे। उसमें एक नौजवान था जो पाबंदी से इमाम के दर्स में आता था। जब इमाम की तकरीर होती थी मस्जिद में, बयान होता था, तो वो नौजवान पाबंदी से आता था। मुसलसल आ रहा है, इमाम उसको देख रहा है। एक मर्तबा खुद ही वो बोला इमाम के पास आकर, तवज्जो चाह रहा हूँ, आकर कहता है कि मैं आपके बयान सुनने आता हूँ, आपके दर्स में आता हूँ, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं आपका कट्टर दुश्मन हूँ। आप देखिए उस नौजवान में कितनी हिम्मत थी। मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, कट्टर दुश्मन हूँ, शाम का रहने वाला हूँ, शामी अकीदा रखता हूँ। इमाम ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया, खामोश। लेकिन उसके बावजूद भी वो आता रहा। लेकिन इमाम ने इतना जरूर पूछा कि जब तुम दुश्मन हो तो आते क्यों? तो उसने कहा कि मैं दुश्मन जरूर हूं, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपका कलाम बहुत अच्छा लगता है, आप जो फसीहुल लिसान है, जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, वो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। इमाम खामोश, चुनाचे वो आता रहा। एक दिन वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो एक मरतबा इमाम ने लोगों से पूछा कि वो शख्स आता था, नौजवान आता था पाबंदी से, आज वो नहीं आया,
तो किसी ने कहा कि वो बीमार है, बस ये सुनना था। इमाम ने कहा कि मैं उसकी इयादत के लिए जाऊँ। इमाम उसके घर तशरीफ ले गए। उसने इमाम के चेहरे को गौर से देखा, हैरान रह गया, परेशान कि मैं तो कह चुका हूँ कि मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं शामी हूँ, शामी अकीदा रखता हूँ, और ये मेरी इयादत के लिए आए हैं। बस जैसे इमाम का चेहरा देखा, फौरन कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह की हुज्जत है। कि इमाम ने कैसे उसको अपना बना लिया। इमाम ने कोई तबलीग की, ना पैगाम, ने कुछ नहीं, बस अखलाक का मुजाहरा किया और दुश्मन दोस्त बन गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है सीरत के पहलू कि अगर आज भी हम गैर को अपना बनाना चाहते हैं तो गैर न तो पैसे से आपके अपने बन सकते हैं, ना दौलत से अपने बन सकते हैं, ना ताकत और कुव्वत से अपने बन सकते हैं, ना डरा धमका के आप गैरों को अपना बना सकते हैं। अगर आप गैरों को अपना बनाना चाहते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा कीजिए, दुश्मन दोस्त बनते चले जाएंगे। सलावत और मोहम्मद। और तीसरा मैसेज जो इमाम की जिंदगी का है वो क्या है? वो है खुद मेहनत करना। खुद मेहनत करना। इतने बड़े आलिम बाक़रुल उलूम जो इमाम हो, कस्बे माश के सिलसिले में इमाम कितने कोशा थे। दोपहर का वक्त, तमाज़त आफ्ताब, लू चल रही है और इमाम खेत पर काम कर रहा है। मोहम्मद बिन मुकंदिर कहता है कि मैंने देखा कि दोपहर के वक्त फर्जंद रसूल खेत पर काम कर रहे हैं, पसीने में शराबोर। एक मर्तबा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद इमाम से कहता कि फर्जंद रसूल, आप फर्जंद रसूल हैं, आप खानदान रसाले से ताल्लुक रखते हैं, आप अहले बैत रसूल से ताल्लुक रखते हैं, और इस गर्मी में, इस धूप में आप ये काम कर रहे हैं। अब जो इमाम ने जवाब दिया वो हर नौजवान, हर शख्स को सुनना चाहिए कि इमाम ने क्या जवाब दिया। वो हिकारत से कह रहे थे कि आप इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खानदान रिसालत से आपका ताल्लुक है, और आप ये वक्त ये काम कर रहे हैं दोपहर में। ऐसी सुन्नत है कि मर्तबा इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, भाई याद रखो मेरे अहलो अयाल हैं, उनकी जिंदगी का बार मैं उठाऊंगा। वही इंसान खुश नसीब है कि जो अपनी जिंदगी का बार खुद अपने कांधों पर डाले, ना कि दूसरों के कांधों पर रखे। याद रखो, किसी के आगे हाथ फैलाना ऐब की बात है, मेहनत और मजदूरी करना ऐब की बात नहीं। सलावत और मोहम्मद। तो अज़र कभी भी ये ना सोचिएगा कि हम ऊंचे खानदान के हैं, आला खानदान के हैं, आला कौम से ताल्लुक है। नहीं, रिश्ते हलाल होना चाहिए। रिश्ते हलाल मेहनत करके जितना भी मुख्तसर से भी आप कमा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह इसको इबादत का दर्जा अता करता है। बस कोशिश इस बात की कीजिए कि रिश्ते हलाल होना चाहिए। हम किस खानदान से ताल्लुक है, किस खानवादे से ताल्लुक है, कुछ नहीं, बल्कि बस हमको क्या देखना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। इसलिए कि किसी के आगे हाथ फैलाना ऐब की बात है, मेहनत और मशक्कत करना ऐब की बात नहीं। अगर इंसान हलाल तरीके से अपने अहलो अयाल का पेट भर रहा है तो उसके लिए रिवायत में वारिद हुआ है कि वो इंसान के जो कस्बे माश के लिए मेहनत करता है वो कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो उस मुजाहिद के मानिंद है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यह इमाम की सीरत का पैगाम है हमारे लिए कि एक तो हमें इल्म हासिल करना है, दूसरे आला अखलाक का मुजाहरा करना है और हलाल तरीके से कस्बे माश करना। बस ये अगर इन्हीं चीजों पर हम अमल कर लेंगे तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इस मुबारक मौके पर बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गूं कि परवरदिगारा तुझको इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता, हम में जो परेशान हमारे उनके परेशानी दूर फरमा, जितने बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमा, जितने मकरूदीन उनके कर्जों को अदा फरमा, जाबिल मोमिनीन उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ला परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम इस्लाम को कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा, हमारे ला हां इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके हमारा मसाल में सुना नाम